Hello students, in our previous lecture we had completed the topic of Bernoulli's equation, and I had told you that there are 5 applications related to Bernoulli's equation. First application we have already covered in our previous lecture. It was finding the speed of efflux. Okay. Second application we are proceeding for, it is nothing but Venturi tube. Okay. Third application that we will be studying after this will be the lift of an aeroplane. Then fourth application that we'll be studying is blowing of the roof. Okay, because of strong air moving. Okay. Fifth application we'll be studying, it's an atomizer. So these are the 5 applications we are going to cover in today's topic. Let's move on to Venturi tube. What is Venturi tube? The diagram is shown. I've already written. It is used to measure the speed of flow of fluid in a tube. Okay. So in a tube, what is the velocity of the fluid that we can measure with the help of a Venturi tube. It can also be called as Venturi meter, and it has a constriction. Now what is a constriction? Constriction means a narrow space, एक पतला सा space. Okay, we also can call it as orifice. Okay, so यहाँ पर देखो ये ट्यूब में एक पतला सा space है, that is what is called as constriction. ठीक है. So what you can observe is Venturi tube का diameter vary करता है. कहीं पर डायमीटर ज्यादा होगा तो कहीं पर डायमीटर कम होगा. इधर एरिया ज्यादा है तो इधर एरिया कम है. ओके. एंड वी नो कि जहां पर एरिया कम है, नैरो हो जाता है सेक्शन, उधर स्पीड बढ़ जाता है. ओके. सो वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर एट दिस पोजीशन एज कंपेयर टू वेलोसिटी v1. ओके. जहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगा उधर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सो प्रेशर p2 is less when compared to pressure P1. Understood? So हमको सीखना क्या है? हमको सीखना एक फॉर्मूला कि वेलोसिटी ये रीजन में कैसे फाइंड करने का. ओके. सो वी आर गोइंग टू डिराइव दैट फॉर्मूला. ऑब्वियसली बर्नौली का इक्वेशन है तो बर्नौली का इक्वेशन यूज करके ही वो आंसर आएगा. ठीक है. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस पार्ट, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है. करेक्ट. सो पोटेंशियल एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं इसमें, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. अंडरस्टूड. सो बर्नौली इक्वेशन में हम लोग सिर्फ 2 ही टर्म लेंगे, एक तो प्रेशर हेड लेंगे और दूसरा वेलोसिटी हेड लेंगे. सो आई विल बी राइटिंग P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ओके, फॉर दिस एरिया इज इक्वल टू P2 plus half rho v2 square. Got this much? अब इसको सॉल्व करो. P1 minus P2 is equal to half rho v2 square minus half rho v1 square. Got this? Now let's understand P1 minus P2. देखो इधर प्रेशर ज्यादा है तो उसकी वजह से इधर लिक्विड का लेवल भी राइज हुआ है, ज्यादा राइज हुआ है. इधर प्रेशर कम है तो लिक्विड का लेवल कम राइज हुआ है. ओके. सो अगर दोनों का प्रेशर डिफरेंस मुझे फाइंड करना है तो मुझे दोनों के लिक्विड राइज का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. ओके, व्हिच आई हैव डिनोटेड बाय H. ओके. सो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? वी नो P1 minus P2. We have already studied in our starting lectures, lecture 1 or 2. It will be equal to rho GH, basic formula. So इसके बदले मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ rho GH is equal to half rho, कॉमन निकलेगा. Here I will have V2 square minus V1 square. So what you can understand, rho तो कैंसिल हो गया. So therefore 2GH is equal to V2 square minus V1 square. Understood? So this is the formula that is to be used in Venturi tube. Okay, V1 का वैल्यू पता होगा न्यूमेरिकल में आपको, एंड G का वैल्यू तो फिक्स है, हाइट भी दिया होगा, प्रेशर डिफरेंस दिया होगा. Okay, and that is how you can find the velocity at this constriction. So this completes the topic of Venturi tube.
Let's move on to the next application, which is lifting up of an aeroplane. Okay, quite interesting application because सबको इंटरेस्ट रहेगा कि एरोप्लेन लिफ्ट कैसे होता है। रनवे पे जब एरोप्लेन रन कर रहा है अचानक से ऐसा ऊपर क्यों उड़ना चालू हो जाता है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली का लॉजिक है इस पे। ओके, आई हैव ड्रॉन वन डायग्राम। ये डायग्राम किसका है पहले अच्छे से समझ लो। This is the cross section of aeroplane wing. Okay, this is cross section of aeroplane's wing. अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल लाइक एरोप्लेन का दो विंग रहेगा, एक समझ लो ये साइड, दूसरा समझ लो ये साइड। ओके, सो ये जो विंग है इसको ऐसे कट करो। ओके, तो पूरा कट करो एंड देन व्हेन यू सी इट फ्रॉम द फ्रंट या तो फिर ये साइड से देखो। ओके, सो ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ओके, अंडरस्टूड हाउ इट लुक्स। एरोप्लेन जो है लाइक इट इज something like this looking from the front। फ्रंट से देखोगे तो ऐसा एरोप्लेन का विंग दिखता है, उसको क्रॉसली कट करो एंड ये साइड से ऑब्जर्व करो तो ऐसा शेप का वो एरोप्लेन का विंग रहेगा। अंडरस्टूड? नाउ such type of shape helps in lifting up of an aeroplane. Now let's understand why। ये जो मैंने लाइंस दिखाया that is the flow of the fluid। अब एरोप्लेन के उधर फ्लूइड क्या होगा, ऑब्वियसली एयर होगा, तो एयर का ये फ्लो है। वी कैन कॉल दिस एज स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो स्ट्रीम लाइन का फ्लो इधर बेंड होके जा रहा है। ओके, एंड इधर ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहा है, फिर एंड पे थोड़ा बेंड हो रहा है बिकॉज उसका शेप ही वैसे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये एयर का जो फ्लो है वो ऐसा बेंड होके क्यों जा रहा है, वो ऐसा लाइक सीधा क्यों नहीं चला गया। तो देयर इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इन अ डे टू डे लाइफ। आप भी ट्राई कर सकते हो। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लो या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लो, लेट्स से दिस। ओके, ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप वाटर फ्लो करो। सो जब आप देखोगे वाटर जो रहेगा नॉट इन टू स्पीड, लाइक एकदम फुल स्पीड में फ्लो मत करना, जस्ट आई वुड से फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर फ्लो करो। योर ऑब्जर्वेशन विल बी वाटर का ड्रॉप जब इसके ऊपर गिरेगा वो ऐसा पूरा पेरीफेरी को टच करके नीचे आएगा। अंडरस्टूड? सो सेम वे इधर भी वही होता है, जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो यहाँ टच करके सीधा नहीं जा सकता, वो हमेशा ऐसा ऑलमोस्ट पेरीफेरी को टच करके ही जाता है। Now what is the reason behind that? Listen carefully. The pressure over here is nothing but atmospheric। बराबर? अब ये फ्लो को इधर टच करके जाना है। ओके, सो डेफिनेटली ये साइड around this the pressure should be low than atmosphere। okay, so I write over here the pressure should be lower। किधर? पेरीफेरी के इधर। तो ही क्या होगा, इधर का प्रेशर है हाई एंड ये पेरीफेरी के उधर का प्रेशर है लो। सो उसकी वजह से आपको पता है कि फ्लूइड हाई टू लो ही ये प्रेशर अप्लाई करेगा। सो यहाँ पर एक फोर्स रहेगा जिसकी वजह से ये सारे फ्लूइड के जो फ्लो है वो बेंड होकर जाता है, ऑलमोस्ट पेरीफेरी को टच होके जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो द कंक्लूजन इज व्हाट, ये रीजन में, ओके, ये कर्व्ड रीजन में प्रेशर लो है। अब ये स्ट्रेट वाले रीजन में देखो, उधर तो ऐसा कोई इशू है ही नहीं, इट इज अ स्ट्रेट फ्लो, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर देन दिस एरिया। अंडरस्टूड? सो हियर आई विल राइट the pressure over here is high, which is equal to atmospheric pressure। समझ में आया? So now you understand two things, इधर pressure high है और इधर pressure low है, and हमको एक simple concept पता है that fluid flow from high to low always। So उसकी वजह से एक force रहेगा which is going from high to low this way। ओके, और यही फोर्स को हम बोलेंगे लिफ्ट। दिस फोर्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिफ्ट। सो ये एक अपवर्ड फोर्स है, आप समझ जाओ। ये तो सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिया था, इतना बड़ा विंग रहेगा, सब जगह ऐसा एक लिफ्ट रहेगा, सब जगह हर जगह लिफ्ट रहेगा। ओके, सो दैट लिफ्ट
will obviously lift the aeroplane. This is the concept behind lifting up of an aeroplane. Simple है, pressure difference create होता है shape की वजह से. Understood? Same way, let's move on to this side. The winds are stormy, very heavy winds are flowing. ठीक है, तो जब वो घर के उधर से जाता है, अगर ऐसा शेप है आपके घर का, ओके, so what is going to happen? Again same thing, जो एयर का फ्लो रहेगा वो ऐसा बेंट होके जाएगा, टच होकर जाने का ट्राई करेगा, बिकॉज इधर का प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेयर और इधर का प्रेशर थोड़ा कम रहता है, तो ही वो टच करके जाते हैं, प्रॉपर्टी है फ्लूइड का. ओके, सो जब ये ऐसे टच करके जाता है, इधर प्रेशर कम है एंड ये साइड प्रेशर ज्यादा है. Here the pressure is low and here the pressure is nothing but atmosphere which is high. So again simple property, high to low flow होगा fluid. Okay, so एक force रहेगा, so that is how एक upward force रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, lift बोलेंगे. Okay, and because of this lift, this time aeroplane lift नहीं होगा but आपका roof lift हो जाएगा. Have you understood? So this is how blowing of roof takes place by stormy winds. Clear with this? एक और simple logic है. I'll tell you. This was the actual in detail logic of this. But एक और simple logic है बताता हूँ. इतना याद रखो that when this streamlines are flowing over here, इधर ऐसा समझो velocity increase हो रहा है. Velocity of flow is increasing. And जहां पर velocity flow का increase होता है, उधर प्रेशर होगा डिक्रीज. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ पाइप. जहां पर नैरो सेक्शन है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन, जहां नैरो सेक्शन होता है उधर वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेयरएज प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. सो अपर रीजन में ऐसा ही समझो, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेयरएज लोअर सेक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फ्लो है. ओके, सो नॉर्मल वेलोसिटी एंड नॉर्मल प्रेशर. तो इधर प्रेशर हाई है एंड इधर प्रेशर लो है. So again this causes an upward lift, जिसकी वजह से एरोप्लेन लिफ्ट होता है. सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो. इधर वेलोसिटी हाई है एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर लो हो जाता है एंड दैट कॉजेस लिफ्ट. So this completes two more applications of Bernoulli's equation which are quite interesting and related to our day-to-day life. Let's move on to the last application which is atomizer. अब atomizer क्या है? I'll give you a simple example of spraying insecticides. Okay, अगर आपको कुछ स्प्रे करना है insecticides or something like that, आपके पास एक ट्यूब रहेगा. ओके, ट्यूब के एंड पे एक हैंडल रहेगा. यू कैन सी. ओके, ये हैंडल को आप होल्ड करोगे एंड ऐसा पुश करोगे. ओके, सो यहाँ से एक फ्लो निकलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसा कुछ स्प्रे निकलेगा. करेक्ट है ना? सो यहाँ से जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो, इधर से स्प्रे होता है. ओके, इट कुड बी इंसेक्टिसाइड्स, even it could be a normal spray also, body spray and something like that. Okay, so this all things are working on again the same principle of Bernoulli scientists. Correct? So let's see what happens over here. ठीक है? Here this is your piston. ये पार्ट को आप piston बोलोगे. ठीक है? And इधर से आप जब force apply करोगे, so what actually you are doing, you are blowing air. आप एक फुल फोर्स में एयर को ब्लो कर रहे हो, उसका स्पीड बढ़ा रहे हो, ब्लोइंग ऑफ एयर. अब ये साइड क्या है? दिस इज दैट लिक्विड जो हमको स्प्रे करना है. करेक्ट? अब लिक्विड के अंदर एक ट्यूब है. ठीक है ना? जैसे आप इधर एयर को फुल स्पीड में ब्लो करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इधर वेलोसिटी इंक्रीज होगा. ओके, जैसी वेलोसिटी इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा. सो ये जो एरिया है, दिस एरिया जहां पर मैंने सर्कल बनाया है, उधर प्रेशर हो गया डिक्रीज. ओके, whereas इधर प्रेशर वही है जो नॉर्मल है. सो आई कैन से द प्रेशर हियर इज लो whereas प्रेशर हियर इज हाई. हमको सिंपल प्रॉपर्टी पता है फ्लूइड का. फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. सो यहाँ से फ्लूइड
ऐसे धीरे धीरे राइज होता है एंड ये एरिया में आ जाता है, दिस एरिया। अंडरस्टूड? सो लिक्विड राइजेस अप एंड जो एयर ब्लो हुआ है उसकी वजह से वो उसको स्प्रेड कर देता है। हमको सिर्फ यही चाहिए कि लिक्विड ऊपर तक आना चाहिए, बाकी हमने जो यहाँ से फोर्स अप्लाई किया है वो उसको डेफिनेटली स्प्रेड कर देगा। सो लिक्विड राइज होने का यही लॉजिक है। इन दिस रीजन प्रेशर बिकम्स लो and in this region pressure becomes high and liquid rises up. Same concept, let me tell you, happens in a straw also. When you are drinking a juice, okay, आपके पास straw होता है, okay, and what you do, you suck the straw. So while sucking the straw, what happens, आप air को खींच रहे हो, so वो straw में when you suck, your mouth is over here. ओके, सो जब आप एयर को सक करते हो ये एरिया में प्रेशर बिकम्स लो, करेक्ट, एंड नीचे जहां पर जूस रहेगा, लाइक दिस इज इन द ग्लास, इन दिस रीजन द प्रेशर इज हाई, सो दैट इज हाउ द juice comes from high region to low region and it reaches your mouth. So simple logic hai, okay, on this concept atomizer works. So this completes our fifth application of Bernoulli's equation and this is how the chapter is completed. Okay students, so we are done with the theory of this chapter. While taking theory, I was taking numericals also along with that topic. Now only two numericals are left. One is related to speed of efflux and another is related to Venturi tube. Once I complete both these numericals, I will declare that this chapter is over from theory perspective as well as from numericals perspective. So I'm moving on to sum number 16 from your unsolved exercise. I'm reading that sum. With what velocity does water flow out of an orifice in a tank? Like tank है बड़ा सा, उसमें orifice है, orifice का मतलब आपको पता है एक छोटा सा होल, उसमें से क्या velocity से water flow होगा? So we are supposed to find velocity. Okay, orifice का topic आ गया, मतलब I hope you understand it is the concept of speed of efflux. Okay, gauge pressure is given 4 into 10 raised to 5. So 4 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Clear? अब gauge pressure का formula, if you remember, it can be written as rho gh. Okay, we have already studied in one of the topic called as open tube manometer. Okay, gauge pressure का ये formula होता है. Next, density of water is given. Density is given as 1000 kilogram per meter cube. So let's solve this formula. We have already studied. Speed of efflux formula is V is equal to root 2gh. Okay, so what we will do, हम लोग यही गेज प्रेशर को यूज करते हैं. रो जी एच इज इक्वल टू 4 into 10 raised to 5. इसमें रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1000, दैट विल बी 10 raised to 3 into gh is equal to 4 into 10 raised to 5. So gh का वैल्यू मिल जाएगा, this will become 4 into 10 raised to 2. Okay, अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. Velocity is equal to 2 into gh is equal to 2 into 4 into 10 raised to 2. तो ये आपको 800 मिलेगा. 800 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करो from log table and that is how you will get the answer. If you are struggling with log table, I'll tell you, इसमें 800 का स्क्वायर रूट लॉग टेबल में डायरेक्टली नहीं मिलता है, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा. So you will make it 8 into 10 raised to 2. 8 का स्क्वायर रूट डेफिनेटली 2.828 होगा लॉग टेबल में, एंड 10 raised to 2 का स्क्वायर रूट 10 raised to 1. Okay, so this is how your final answer is 28.28 meter per second. Okay, let's move on to the next numerical, which is 17th. I'll read that. Pressure of water inside closed pipe is 3 into 10 raised to 5. So pressure is given
Next, this pressure reduces to 2 into 10 raised to 5 on opening the wall of a pipe. So pressure reduce हुआ 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब एक ओपनिंग रहेगा छोटा सा. ओके, वी नो दैट नैरो रीजन में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. एक छोटे से सेक्शन से प्रेशर कम हो जाता है. ओके, सो दिस विल बी टर्म्ड एज योर P1, दिस विल बी टर्म्ड एज योर P2. सो ये एक वेंचुरी ट्यूब जैसा क्वेश्चन समझ लो जहां पर कंस्ट्रिक्शन है and they have asked you to calculate the speed of water. So we are supposed to find the velocity. But this, so again एक constriction है, मतलब orifice type का ये है section. Speed of efflux ही समझो, सिर्फ दो pressure दिया हुआ है. Okay, density is given in the question, which is again 1000 kilogram per meter cube. So formula will be again the same. Velocity is given by 2gh. Okay, but अभी gh value कैसे find करेंगे? Again the same thing. P1 minus P2 Venturi meter में we have studied P1 minus P2 can be written as rho gh. Okay, so इन दोनों को subtract करोगे तो 3 minus 2 that will give you 1. ठीक है, 1 into 10 raised to 5 is equal to density का value है 1000 into gh. So gh का आंसर आया 1 into 10 raised to 2. Got this? Now same way, velocity is equal to 2gh is equal to 2 into 1 into 10 raised to 2. This will become 200. Like previous sum, decimal shift करो. Square root of 2, I hope you know the value, 1.414 into 10 raised to 1. So this will give you 14.14 meter per second. So this is how this chapter is finally completed with numericals. Okay, thank you.